Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we'll start lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you look at in your textbook. We'll start lesson number 5, factors and multiplies. So before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So student, all of you know very well what you had learned in this lesson. So student, what you had learned? So first we had learned the multiplies. After the multiplies, we had done the property of multiplies. So student, how many property of multiplies? 5 property of multiplies. So first property of multiplies is every number is multiple of itself. Every number is a multiple of itself. Then property number 2, every number is a multiple of 1. Every number is multiple of 1. Then property number 3, a multiple of number is always greater than or equal to the number itself. A multiple of numbers is always greater than. Multiple of number is always greater than or equal to a number itself. Then property number 4, a number has an uncountable number of multiplies. A number has uncountable numbers of multiplies. Then property number 5, there is no largest multiple of number. There is no largest multiple of the number. So this is the multiplier. Then after we had done the odd and even number. So which number is known as student odd number and which number is known as the even number. So number which is multiple of 2, a number which is completely divisible by 2. This number is known as the even number. So in the even number, which are the number is coming 2, 4, 6, 8, 0 also. So number which have a last number. The number which have a last number 0, 2, 4, 6, 8. So that number is always even number. जो भी नंबर होगा और उस नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आता है तो वो इवन नंबर हो जाता है. सो दिस इज द when the number is 2 digit, 3 digit, 4 digit and etc. अगर नंबर 2 डिजिट से स्टार्ट होता है तो जो लास्ट वाला डिजिट क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है तो वो कौन सा नंबर होता है इवन नंबर. और 1 डिजिट का नंबर होगा तो 0, 2, 4, 6, 8 ये जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे इवन नंबर. एंड ऑड नंबर मीन्स द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 एंड नंबर which are not divided by 2. The number which has not divided by 2, this is known as the odd number. So odd number is 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. This is the single one digit number. This is the odd number and etc. और बहुत सारे odd numbers होते हैं. So these are we had done. Then after we had done the exercise 5.1. Then after we had done the factors. So student, what is the meaning of factor? What is the definition of factor? Factor means factors of number divide the numbers without leaving a remainder. फैक्टर्स मीन्स अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है मीन्स उस नंबर का वो फैक्टर हो जाएगा. जैसे 15 है, 15 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 15 है, 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिल जाएगा 5 और रिमाइंडर कितना मिल गया है 0 मिल गया. मीन्स 15 का फैक्टर क्या हो गया 5. 15 का फैक्टर क्या हो गया 5 एंड 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15. मीन्स 15 के फैक्टर क्या हो गए 3 एंड 5. दिस आर द फैक्टर ऑफ द 15. सो नाउ लुक एट हियर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. सो बोथ 3 एंड 5 ये दोनों क्या हो गए फैक्टर ऑफ द 15. ये क्या हो गए 15 के फैक्टर हो गए एंड 15 इज द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5. सो लुक एट हियर डिफरेंट
3 और 5 ये जो दोनों नंबर है ये 15 के फैक्टर्स हैं, मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलता है। सो 15 के फैक्टर क्या है, 3 एंड 5 है। और 15 अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 5 मिलेगा, और 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 हमें आंसर मिलेगा। सो 15 के 2 मल्टीप्लाइज क्या है, 3 एंड 5। 15 के 2 मल्टीप्लाइज क्या है, 3 एंड 5। अगर हम 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 5 मिलेगा, और 5 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 3 मिलेगा। सो 15 के दोनों क्या है, मल्टीप्लाइज है, और 15 के फैक्टर क्या है, 3 एंड 5। दिस आर द फैक्टर। When we multiply two or more number, we get a product. When we multiply two or more number, we get a product. The product is a multiple of each of the number multiplies. So each is the factor of the product. So each number has the multiple of the factors. Then after we had done the finding the factors. How to find the factors? अगर बड़ा नंबर दिया है और हमें फैक्टर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। फिर हम क्या करेंगे, 2 को वो नंबर के डिवाइड करके देखेंगे, 3, 4, 6, 7 ऐसे हम उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। देन नेक्स्ट वी हैड डन द फैक्टर 3। सो फैक्टर 3 जब होते हैं तब हम 1 को नहीं लिखते। तो फॉलोइंग डायग्राम आर कॉल्ड फैक्टर ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्रीज। दे शो द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। द नंबर 1 इज नॉट शो द फैक्टर ट्री सिंस इट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो व्हेन वी आर टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ ट्री, when we are take out the factor tree of the number, so that time we are not writing a 1। उस समय हम 1 को नहीं लिखते। जैसे 6 के 2 फैक्टर्स है, 3 एंड 2, तो 3 एंड 2, और हम जब फैक्टर ट्री से किसी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे तो उस नंबर को हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे 3 और 2 ये दोनों भी प्राइम नंबर है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द इटसेल्फ नंबर। मीन्स नाउ 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 2 है। तो 3 किसी टेबल में आते हैं क्या, नहीं। 3 के टेबल में 1 वाले प्लेस में आते, तो 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 1 है। देन 2 किसी के टेबल में आते हैं क्या, नहीं। 2 के टेबल में आता है और वो 1 वाले प्लेस में आते हैं, तो 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द इटसेल्फ नंबर, दिस इज नोन एज द प्राइम नंबर। और जब हम फैक्टर ट्री से क्या करते हैं, नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, तब उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे जब तक वो प्राइम नंबर में फैक्टर्स नहीं आ जाएंगे। सो 12 के क्या फैक्टर्स है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होता है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होता है। देन 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। एंड देन 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 ही है, इसलिए इसको हमने ब्रॉट डाउन किया, इसको नीचे लिया। देन 24 को 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 होते हैं। अभी 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 एंड 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। सो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3, 2, 2, 2, ये 24 के फैक्टर्स हो गए। So then after we had done the exercise 5.3, then after we had done the prime and composite number. So which number is known as the prime number and which number is known as the composite number? So first is the prime number. So number which have only 2 factors. Number which have only 2 factors, 1 and the number itself are called the prime number. ऐसे नंबर जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 is the 1 and second is the itself number। जैसे 11 सिर्फ 11 के टेबल में 1 वाले ही प्लेस में आता है और कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो 11 क्या हो गया है, प्राइम नंबर हो गया है। देन कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। सो लिस्ट ऑफ द कंपोजिट नंबर बिटवीन द 11 एंड 20। 11 और 20 के बीच में हमने क्या निकाले थे, यहाँ पे
हमने कंपोजिट नंबर निकाला. सो 12 is present in the 2 tables, then 6 tables, 3 tables, 4 tables. तो 12 के फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया. Then 1 is not a prime number and nor a composite number. 1 neither prime number nor composite number. 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है. इट हैज़ अ यूनिक नंबर. इट हैज़ अ यूनिक नंबर. सो 1 प्राइम नंबर में भी नहीं आएगा और कंपोजिट नंबर में भी नहीं आएगा, वो क्या होगा, यूनिक नंबर होगा. Then next is the properties of factors. So first property of factors is every number can be divided 1 without a leaving remainder. अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को हम 9256 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 को 9256 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमें इसका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. और क्वेश्चन कितना मिल जाएगा, 9256 ही हमें क्या मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन मिल गया. तो अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा उसका रिमाइंडर 0 मिलता है. मीन्स 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए 1 सभी नंबर का फैक्टर्स होता है. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर. 1 ये सभी नंबर का सबसे छोटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर. देन प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी नंबर कैन बी डिवाइड बाय इटसेल्फ विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, देयरफॉर एवरी नंबर इज द फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से इटसेल्फ नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा फैक्टर्स क्या मिलेगा, हमेशा हमें उसका रिमाइंडर 0 मिलेगा और क्वेश्चन 1 ही मिलेगा. इसलिए वो सभी नंबर का जैसे 2 है, अगर हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 मिल गया. मीन्स 2 का फैक्टर्स है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एवरी नंबर कैन बी डिवाइड बाय इटसेल्फ विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, देयरफॉर एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर. Then property number 3, a number has a limited numbers of the factors. सभी नंबर्स के लिमिटेड फैक्टर्स होंगे, जैसे 15 के 4 ही फैक्टर्स होते. 15 के 4 फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 एंड 15. ये 15 के फैक्टर होंगे. तो सभी नंबर के लिमिटेड ही फैक्टर होंगे. 24 हैज़ अ 8 फैक्टर. 24 के क्या होते हैं, 8 फैक्टर्स होते हैं. अब फैक्टर्स ऑफ नंबर नाइदर इक्वल स्मॉल दैन द नंबर, द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. सभी नंबर का जो बिगेस्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इटसेल्फ नंबर ही होगा. जैसे 15 है, 15 का जो बिगेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा. बिगेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 ही होगा. Means every number has a biggest, every number, the factor of the number neither equal to or smaller than the number, the biggest factor of the number is the number itself. उसका biggest factor हमेशा क्या होगा, itself number ही होगा. So these are the we had done. Then after we had done last class exercise 5.4 question number A. These are the we had done in our last class. Now we will start question number B. List all the prime number between. हमें क्या करना है, प्राइम नंबर बिटवीन के निकालना है. सो 1 and 15, 1 से लेकर 15 नंबर तक कौन से प्राइम नंबर आते हैं, हमें वो उसकी लिस्ट निकालनी. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर B1. सो क्वेश्चन नंबर B1 मत B का A. सो 1 and 15, हमें 1 से लेकर 15 तक प्राइम नंबर निकालना है. सो हम लिख देंगे यहाँ पे लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, किसके बिटवीन से निकालेंगे, 1 to 15.
सो 1 to 15 के बीच में हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे, ठीक है। सो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो 1 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। देन नेक्स्ट इज द 2, यस 2 इज द प्राइम नंबर। 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड द 2। So first is the definition of the prime number. So what is the definition of the prime number? The number which have only 2 factors, 1 and the itself number. This is known as the prime number. So 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द itself number, मतलब 2 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। देन 3, यस 3 आल्सो प्राइम नंबर। 3 के फैक्टर्स 2 ही निकलते हैं, 1 एंड द 3, सो 3 आल्सो प्राइम नंबर। देन 4 इज द प्राइम नंबर, नो 4 इज अ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, तो 4 के फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, तो वो प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। देन नेक्स्ट इज द 5 इज द प्राइम नंबर। 5 के ओनली 2 फैक्टर्स होता है, 1 एंड द itself नंबर, मीन्स 5 इज द प्राइम नंबर। देन 6 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है, मीन्स 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6, ये 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे, मीन्स 6 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। देन 7 आल्सो प्राइम नंबर, बिकॉज 7 is present only 7 tables and only present in the 7 table in the place of 1, मीन्स 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 7 ओनली 2 ही हो जाएगा, तो 7 इज द प्राइम नंबर। देन 8 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, तो उसके फैक्टर्स भी निकलेंगे 2 से ज़्यादा, मीन्स 8 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। देन 9 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा 9 होता है, और 9 के टेबल में भी आता है, मीन्स जो 9 है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, मीन्स 9 आल्सो कंपोजिट नंबर, दिस इज द नॉट प्राइम नंबर। देन 10 भी क्या है, 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, मीन्स 10 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। देन 11 इज द प्राइम नंबर, बिकॉज 11 इज प्रेजेंट ओनली 11 टेबल्स। 11 जो होता है वो 11 के ही टेबल में प्रेजेंट होता है, इसलिए 11 क्या है, 11 इज द प्राइम नंबर। देन 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 4 6 एंड 12 के भी टेबल में आता है, तो 12 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। देन नेक्स्ट इज द 13 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि 13 जो होता है वो सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, इसलिए 13 क्या है, प्राइम नंबर है। देन 14 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के भी टेबल में आता है, तो 14 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। देन 15 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, मीन्स 15 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। सो लिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 15 is 2 3 5 7 11 and 13, these are the prime number between the 1 and 15, तो ये प्राइम नंबर है कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 15 तक। देन बी इज द 30 एंड 15, हमें प्राइम नंबर निकालना है 30 से लेकर 50 से। सो फर्स्ट वी विल राइट लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50, 30 से लेकर 15 तक के बीच में हमारे प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द 30, सो 30 इज प्रेजेंट इन द 5 tables, 6 table, 15 table, 3 tables एंड देन 30 tables, सो 30 फैक्टर्स होगा क्या, नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज द 31, सो 31 सिर्फ 31 के ही टेबल में प्रेजेंट होता है, इसलिए 31 इज द प्राइम नंबर।
देन 32 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 32 4 के टेबल में आता है, देन 32 के टेबल में आता है, एंड 6 के टेबल में भी 32 8 के भी टेबल में आता है. सो 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर. देन 33 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 33 11 के टेबल में आता है, तो 33 भी प्राइम नंबर नहीं होगा. देन 34 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 34 भी प्राइम नंबर नहीं होगा. देन 35 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 36 भी प्राइम नंबर नहीं है. 37 इज द प्राइम नंबर. 37 क्या है? प्राइम नंबर है. 37 सिर्फ 37 के ही टेबल में आता है. Then 38 also not a prime number. Then next is the 39 also not a prime number. 39 is present in the 13th table. 13 के टेबल में आता है, तो 39 also not a prime number. Then 14 also not a prime number. Then 41 is the prime number. 41 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 41 जो नंबर है वो सिर्फ 41 के ही टेबल में आता है. देन 42 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. देन 43 आल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 43 सिर्फ 43 के ही टेबल में आता है. देन 45 भी प्राइम नंबर नहीं है. देन 46 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. देन 47 जो 47 है सिर्फ वो 47 के ही टेबल में आता है. देन 47, देन 48 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. देन 49 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. देन लास्ट इज द 50 आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. सो लिस्ट बिटवीन द प्राइम नंबर 30 to 50. 30 to 50 के बीच में प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 31, 37, 41, 43 and 47. These are the prime number between the 30 and 50. So this is the B number. Now C number list the prime number between the 15 to 100. So these are the homework for you. ये क्या है? आपको होमवर्क है, ये आपको निकालना है प्राइम नंबर की लिस्ट 50 से लेकर 100 तक. सो देन नाउ सेकंड नंबर 67 इज द प्राइम नंबर. यस 67 प्राइम नंबर है. यस 67 इज द प्राइम नंबर. What are the factors of 67? 67 के फैक्टर क्या हो गए? 67 have a 2 factors, 1 and the itself number. तो 67 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो हम सबसे पहले लिख देंगे सेकंड नंबर. यस 67 is a prime number. 67 क्या है? प्राइम नंबर है. Because then next question is the what are the factor of 67? So 67 have a 2 factors, because 67 has a prime number. So 67 has 2 factors. 67 has a 2 factors. So which 2 factors? 1 and 67. 67 has a 2 factors, 1 and the 67. क्यों 2 फैक्टर्स है? क्योंकि 67 प्राइम नंबर है. सो 67 ये किसी टेबल में आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है. 67 सिर्फ 67 जो नंबर है वो 67 के ही टेबल में आपको दिखेगा और किसी नंबर में नहीं दिखेगा, इसलिए 67 क्या है? प्राइम नंबर है. देन थर्ड नंबर क्वेश्चन. सो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज द which is the smallest prime number? So student, which is the smallest prime number? 2 ये क्या है? smallest prime number है. So third number is 2 is the smallest prime number. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा. 1 is not a prime number and not a composite number, means 2 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा.
Then next is the which is the largest two digit prime number. विच इज़ द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर. हमें लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर निकालना है. सो लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज द 97. कौन सा नंबर होता है? 97 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर. सो क्या आंसर आएगा? 97 इज द 97 is the largest 97 is the largest two digit prime number. सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 97. स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ द 2. यहाँ पे 2 डिजिट बोला है. अगर इसके जगह पे सिर्फ यहाँ पे लिखा होता है कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, अदरवाइज लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता, अदरवाइज 1 होता, 1 डिजिट प्राइम नंबर होता, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर प्राइम कौन सा होता? 7 होता. यहाँ पे 2 डिजिट लिखा है, इसलिए 97 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. Now look at here question number 5. So question number 5 is first is a list all composite number between. So हमने सबसे पहले क्या निकाला था? प्राइम नंबर. Now this is the composite number. Now composite number means the number which has a more than a 2 factor. जो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? composite number. So now look at here, we will take out the composite number. So question number 5. From question number 5, a number 20 and 30. 20 से लेकर 30 के बीच में हमें सारे क्या निकालना है? कंपोजिट नंबर निकालना है. तो हम लिख देंगे लिस्ट ऑल कंपोजिट, लिस्ट ऑफ ऑल कंपोजिट number between 20 to 30. 20 से लेकर 30 के बीच में हमें सारे कंपोजिट नंबर निकालना है. ठीक है. सो फर्स्ट इज द 20. 20 इज द कंपोजिट नंबर. यस, 20 क्या है? कंपोजिट नंबर है. देन 21. यस, 21 आल्सो कंपोजिट नंबर, क्योंकि 21 जो है वो 7 के टेबल में आता है. देन 21 के भी टेबल में आता है. इट मीन्स 21 आल्सो कंपोजिट नंबर. देन 22. यस, 22 आल्सो कंपोजिट नंबर, बिकॉज 22 ये 11 के भी टेबल्स में आता है. देन 23. 23 इज द प्राइम नंबर. 23 क्या है? प्राइम नंबर से. तो 23 ये प्राइम नंबर है, तो वो कंपोजिट नंबर होगा क्या? नहीं. देन 24. 24 आल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 24 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 6 के भी टेबल में आता है, 12 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है. सो 24 इज द कंपोजिट नंबर. देन 25. 25 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 25 5 के टेबल में आता है, 25 के भी टेबल में आता है. सो 25 इज द कंपोजिट नंबर. देन 26. 26 भी कंपोजिट नंबर है. 26 आल्सो कंपोजिट नंबर. देन 27. 27 आल्सो कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो 27 है वो 3 के टेबल में आता है, 27 के भी टेबल में आता है. तो 27 आल्सो कंपोजिट नंबर. एंड 9 के टेबल में भी आता है. देन 27. देन 28. 28 आल्सो कंपोजिट नंबर, क्योंकि 28 4 के टेबल में भी आता है. देन उसके बाद 28 जो है वो 7 के टेबल में भी आता है, 14 के भी टेबल में आता है. तो 28 आल्सो कंपोजिट नंबर. देन 29. 29 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि 29 जो है वो सिर्फ 29 के ही टेबल में आता है. देन लास्ट इज द 30. 30 आल्सो
कंपोजिट नंबर, क्योंकि 30 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 15 के भी टेबल में आता है और 13 के भी टेबल में आता है. सो 30 आल्सो कंपोजिट नंबर. Then now done this one, then next is the list between the 30 and 40. 30 और 40 के बीच में हमें क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर निकालना है. कंपोजिट ऑल लिस्ट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 टू 40. 30 से लेकर 40 के बीच में हमें कंपोजिट नंबर निकालना है. सो 30 इज द कंपोजिट नंबर. देन 31 इज द प्राइम नंबर. 31 इज द प्राइम नंबर. देन 32 आल्सो कंपोजिट नंबर. देन 33 भी कंपोजिट नंबर है. देन 34 also composite number. Then 35 also composite number. 36 also composite number. Then 37 is not a composite number. 37 जो होता है वो सिर्फ 37 के ही टेबल में आता है, इसलिए 37 क्या है, प्राइम नंबर है. देन 38 also composite number. Then 39 also composite number. And last is the 40 also composite number. सो 30 से लेकर 40 तक हमने लिस्ट निकाली है. उसमें कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 30, 32, 33, 34, 36, 36, 38, 39 and 40. These are the all composite number. So which number is the prime number here? 31 and 37. Only two numbers is the prime number in this list. अगर हम 30 से लेकर 40 तक हम लिस्ट निकालेंगे तो इसमें 31 और 37 ये टू ही नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है. बाकी सब क्या है, कंपोजिट नंबर. सो दिस इज द बी नंबर. Now C number, this is the homework for you. C number, this is the homework for you. Now question number C and D, these are the we will be see in the next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.